Hello students, today we are going to start with chapter current electricity, which is very important chapter in physics. In previous standard, we have seen some basic concepts related to current electricity, जैसे कि definition of electric current, EMF of cell, potential difference, internal resistance of cell, series parallel combination of resistances. So you know very well what is electric current. Electric current का definition है rate of flow of charge through the conductor. We can write I is equal to charge upon time. We have also seen relation between electric current and potential difference, which is given by Ohm's law. Ohm's law states that electric current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference between the 2 points of conductor as long as physical state of the conductor is same. By this we get formula V is equal to IR. Using this formula, we can calculate potential difference, electric current, resistance in simple circuit. बट कभी कभी ऐसे होता है सर्किट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि ये कुछ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है. यू कैन सी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट ब्रांचेस. नंबर ऑफ EMFs आर आल्सो कनेक्टेड इन डिफरेंट ब्रांचेस. सो सच सर्किट आर कॉम्प्लिकेटेड. टू सॉल्व सच सर्किट्स वी यूज किरचॉफ्स लॉज. Kirchhoff stated two laws to determine electric current and potential difference in complicated circuits. Kirchhoff's first law, which is also called as current law or junction law. Kirchhoff's second law, which is also called as voltage law or loop law. Loop law is used to determine potential difference and current law is used to determine electric current. In today's lecture, we are going to study Kirchhoff's first law. Let us see its statement. The algebraic sum of electric currents at any junction in an electrical network is 0. यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ. Kirchhoff's first law states that the algebraic sum of the electric currents at any junction in an electrical network is 0. Mathematically, we can write it as summation of I is equal to 0 at any junction.
अभी junction word we are using it here in this statement. First we have to understand meaning of junction to understand this statement. Junction. Any point in an electric circuit where two or more conductors are joined together is called a junction. For example, this is point P in an electrical network. Where number of conductors are connected together. तो such point is called junction. जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देखते उसमें हम लोग जंक्शन देखते जो हम लोगों ने पहले देखे हुए ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट. सी इन दिस सर्किट ए पॉइंट इज वेयर टू रजिस्टर्स एंड वन सेल इज कनेक्टेड टुगेदर. तो ए पॉइंट इज जंक्शन. Same way, point B, C, D. At point C, you can see 3 resistors are connected together. So C is also junction. At B, cell and 2 resistors are connected together. So B is also junction. So in this circuit, A, B, C, D, all these points are junction. तो अभी जंक्शन का मीनिंग क्लियर है. यहाँ पे P पॉइंट इज जंक्शन. समझो ये नेटवर्क को मैं एक्सटेंड करती हूँ. यहाँ पे 2 more resistors are connected. तो दिस पॉइंट इज also जंक्शन. तो जंक्शन इट्स मीनिंग इज क्लियर नाउ. नाउ लेट अस सी किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ अगेन. स्टेटमेंट क्या था? द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0. अभी यहाँ पे टोटल करंट का 0 आ रहा है. तो इट इज़ क्लियर कि करंट के कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव रहेंगे, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव रहेंगे. तो ये हम लोग को एडिशन 0 मिलेगा ना. तो विच वैल्यूज़ ऑफ करंट्स वी आर गोइंग टू टेक नेगेटिव. कौन से वैल्यू पॉजिटिव लोगे? तो फॉर दैट साइन कन्वेंशन इज देयर. लेट अस सी दिस साइन कन्वेंशन. Currents which are arriving at the junction are considered as positive and currents leaving the junction are considered as negative. तो सिंपल वैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ. करंट अराइव हो रहा है टूवर्ड्स जंक्शन और यहाँ पे कंसिडर करो करंट इज लिविंग जंक्शन. यहाँ पे ये पॉइंट है समझो जंक्शन. Now, when current is flowing towards the junction, it is treated as positive. तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. एंड व्हेन इट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इट इज टेकन एज नेगेटिव. तो ये साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं हम एक छोटे सर्किट के लिए. तो लेट अस सी एग्जांपल.
यहाँ पे एक नेटवर्क है, ए इज जंक्शन, A is a junction point where four resistances are connected. We can see I1 is current. I1 current is flowing towards the junction. I2 current is also flowing towards the junction. I3 and I4. These two currents are leaving the junction. तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं तो I1 का वैल्यू क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि I1 इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन और अराइविंग एट द जंक्शन. इसका डायरेक्शन है टूवर्ड्स द जंक्शन. I2 इज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जंक्शन, तो I2 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. I3 इज लिविंग द जंक्शन, सो I3 नेगेटिव रहेगा. I4 इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज इट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. ये बाहर जा रहा है जंक्शन के, ये भी बाहर जा रहा है. तो यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन यूज करोगे. करंट्स अराइविंग एट द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव, करंट्स लिविंग द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव. सो अप्लाई करते हैं एट जंक्शन ए किरचॉफ्स करंट लॉ. क्या है करंट लॉ, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0. तो अभी टोटल सम करेंगे सभी करंट्स की. सो फर्स्ट करंट है I1, पॉजिटिव है. सेकेंड करंट इज I2, इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. थर्ड करंट इज नेगेटिव. नेगेटिव वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. एंड करंट I4 इज ऑल्सो नेगेटिव, जो कि हम लोग ऐड कर रहे हैं. एंड दिस टोटल इज इक्वल टू 0 बाय किरचॉफ्स करंट लॉ. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस माइनस माइनस I3 माइनस I4 टोटल इज 0. नाउ रीअरेंज दिस टर्म्स, नेगेटिव वैल्यूज आर शिफ्टेड ऑन दैट साइड. तो वी गेट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4. Now here we can see I1 plus I2. This is sum of electric currents arriving at the junction. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. And this is sum of currents leaving the junction. Current I3 is moving away from the junction. I4 is also moving away from the junction. So sum of currents leaving the junction. अगर इसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज अल्टरनेटिव स्टेटमेंट फॉर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. क्या है, सम ऑफ करंट्स अराइविंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लिविंग द जंक्शन फॉर एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो कि टोटल सम ऑफ करंट्स एट अराइविंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल करंट्स लिविंग द जंक्शन. दैट इज समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0. अभी जंक्शन में जो भी करंट आ रहा है सेम अमाउंट ऑफ करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन
and we know that we just now seen definition of current is rate of flow of charge. इसका मतलब जंक्शन में जितना चार्ज अराइव हो रहा है सेम चार्ज इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, इज पासिंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो रिमेंबर दिस पॉइंट. किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ which is current law and it is also called as junction law is related to conservation of charge. Next we are going to solve one problem based on this. Question is, you are given this electrical network and in this electrical network you are asked to find value of I3 and I5. तो ये electrical network देखो. In this electrical network you can see there are two junctions. यहाँ पे जंक्शन दिख रहे हैं दोनों. जंक्शन P. At junction P, I1 current is arriving at this junction. I2 current is leaving this junction. I3 current is also leaving this junction. So we are going to apply Kirchhoff's current law to get value of I3 at junction P. Same way यहाँ पे हम लोग को I3 की वैल्यू मिलने के बाद at junction Q we can find value of I5. So pay attention for that. See, at junction P applying Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law apply करते क्या है. I1 arriving at the junction तो it is taken as positive. I2 and I3 are leaving junction तो they are taken as negative. और Kirchhoff's law पहले फॉर्मूला लिखते हैं. समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0. अभी ये वैल्यूज़ लिख देते. I1 पॉजिटिव है बट I2 एंड I3 नेगेटिव है एंड टोटल जो करंट है जंक्शन में आ रहे जा रहे 3 है एंड देयर सम इज इक्वल टू 0. सब्सटीट्यूट देयर वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने के बाद हम लोग को मिलता है करंट I1 10 सब्सटीट्यूट किया, I2 7, I3 की वैल्यू वी डोंट नो एंड टोटल वैल्यू इज 0. सिंप्लीफाइंग वी विल गेट I3 वो साइड शिफ्ट किया तो इट इज़ पॉजिटिव. 10 - 7 इज 3. तो करंट का वैल्यू हम लोग को मिला 3 एम्पियर. एट जंक्शन Q, अभी जंक्शन P जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये पार्ट इग्नोर करेंगे. नाउ वी विल इग्नोर दिस पार्ट. अभी जंक्शन Q देखो. एट जंक्शन Q I2 एंड I3 दिस आर पासिंग टूवर्ड्स द जंक्शन. I4 एंड I5 दे आर पासिंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो I2 I3 पॉजिटिव है, I4 एंड I5 नेगेटिव है. तो एट जंक्शन Q अप्लाइंग किर्चॉफ्स करंट लॉ दैट इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0. टोटल करो. I2 I3 पॉजिटिव है, I4 I5 नेगेटिव है. टोटल मस्ट बी 0. सिंप्लीफाइंग हम लोग को ऐसे मिलता है. एक्चुअली ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नो नीड टू राइट दिस वन. डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा. सब्सटीट्यूट देयर वैल्यूज़. I2 का वैल्यू इज़ 7 एम्पियर क्योंकि करंट यहाँ से सेम करंट पास होगा तो I2 इज़ 7 एम्पियर. I3 का वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया 3 एम्पियर. सब्सटीट्यूट इट. I4 का वैल्यू है 2 एंड I5 यू वांट टू कैलकुलेट. तो रीअरेंजिंग सिंप्लीफाइंग I5 ये साइड जाएगा. 7 + 3 10, 10 - 2 8. तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ I5 इज इक्वल टू 8 एम्पियर. अभी ये हम लोगों ने इतने डिटेल में सॉल्व किया है बट वी कैन सॉल्व इट ओरली ऑल्सो. ओरली भी ये सॉल्व कर सकते हो. क्या मैंने जो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट बोला था वो याद रखो. अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है. करंट अराइविंग एट द जंक्शन टोटल वैल्यू इज इक्वल टू करंट लिविंग द जंक्शन. अभी ये जंक्शन में अराइविंग करंट सिर्फ करंट I1 है 10 एम्पियर तो टोटल लिविंग करंट भी 10 एम्पियर होना चाहिए. इफ़ 7 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू दिस ब्रांच मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ करंट विल पास थ्रू दिस ब्रांच. तो I3 का वैल्यू कितना हुआ 10 - 7 3. एट जंक्शन Q टोटल करंट जो अराइव हो रहा है वो कितना है. यहाँ से 7 एम्पियर आ रहा है. यहाँ हम लोग को I3 की वैल्यू मिली 3 तो यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है. यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है
तो टोटल वैल्यू हुआ 10 एम्पियर, 7 + 3 10 एम्पियर। 10 एम्पियर अगर आ रहा है तो 10 एम्पियर करंट शुड लीव द जंक्शन। ये ब्रांच से 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो रिमेनिंग करंट विल पास थ्रू दिस ब्रांच एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट इज 8 एम्पियर। तो I5 का वैल्यू कितना रहेगा, 8 एम्पियर। इन दिस वे ओरली भी तुम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ यू ट्राई दिस क्वेश्चन। इसको पहले सॉल्व करोगे एंड बाद में उसका आंसर देखोगे। तो यहाँ पे वन मोर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज गिवन एंड इन दिस नेटवर्क यू आर आस्क्ड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ I3, I5, I7। अभी हम लोग ये ओरली सॉल्व करते हैं। एट जंक्शन ए सम ऑफ टोटल करंट अराइविंग इज 25 एम्पियर। उसमें से 15 एम्पियर पार्ट इज गोइंग थ्रू दिस ब्रांच, तो रिमेनिंग पार्ट विल पास थ्रू दिस ब्रांच AC। तो यहाँ पे 25 एम्पियर में से 15 एम्पियर यहाँ पे गया तो यहाँ पे कितना बचा, 10 एम्पियर। तो करंट पासिंग थ्रू दिस ब्रांच इज 10 एम्पियर। यहाँ पे देखो ब्रांच ये वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट ब्रांच मतलब क्या, एनी 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जंक्शंस भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड एज, जो कंडक्टिंग पाथ है दैट इज कॉल्ड एज ब्रांच। अभी यहाँ पे I3 का वैल्यू हम लोग को मिला, I3 का वैल्यू इज 10 एम्पियर। एट जंक्शन C करंट I3 अराइव हो रहा है, I5 इज लिविंग जंक्शन, I6 इज ऑल्सो लिविंग जंक्शन। यहाँ पे अराइविंग करंट था 10 एम्पियर। आउट ऑफ 10 एम्पियर 7 एम्पियर यहाँ से जा रहा है तो बचा हुआ 3 एम्पियर विल पास थ्रू दिस ब्रांच। तो I5 का वैल्यू कितना रहेगा, तो इट इज 3 एम्पियर। एट जंक्शन B टोटल अराइविंग करंट इज 15 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 18 एम्पियर। आउट ऑफ दैट 8 एम्पियर इज पासिंग अवे फ्रॉम दिस ब्रांच, तो रिमेनिंग करंट विल पास थ्रू दिस ब्रांच। तो I7 का वैल्यू कितना रहेगा, यहाँ पे 8 एम्पियर जा रहा है आउट ऑफ 18, तो यहाँ पे बचा 10 एम्पियर। तो यू विल गेट वैल्यूज ऑफ I3, I5 एंड I7 एज 10 एम्पियर, 3 एम्पियर। I7 की वैल्यू रहेगी 10 एम्पियर। इसको तुम लोग डिटेल में लिख सकते हो, हम लोगों ने इसको ओरली सॉल्व किया है। सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव सीन meaning of junction, that is any point in an electrical network where 2 or more conductors are joined together। loop हम लोग जब सेकेंड लॉ देखेंगे तभी देखेंगे। branch, a branch is any part of the network that lies between 2 junctions, जैसे मैंने अभी बोला। we have seen Kirchhoff's first law, the algebraic sum of current at any junction is 0। साइन कन्वेंशन देखा, currents arriving at junction treated as positive, currents leaving the junction are treated as negative। एक ये एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने देखा। एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट Kirchhoff's फर्स्ट लॉ इज कंसिस्टेंट विथ द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।